the secretary of this Ramakrishna Mission Ashrama Belgaum, for inviting me and giving me the opportunity of once again visiting the Vivekananda Memorial here. As you know, there are about 18 memorials of Swami Vivekananda throughout the world. 3 in America, rest in India. But not a single city has got 2 memorials of Swami Vivekananda except Belgaum. That is because Swami Vivekananda stayed in Bhatte's house for 3 days, 16th to 18th of October 1892, and then 9 days here. You must have visited this house where Haripad Mitra, forest officer, he was the guest, he was the host of Swami Vivekananda for 9 days. Fortunately, both the old buildings were surviving and they have been renovated, and so now we have 2 memorials. Yesterday I visited the Vivekananda Memorial at Bhatte's house. Wonderfully done, it has been done. Still many things to be added, but a beautiful museum, beautiful exhibition. All of you must visit that Vivekananda Memorial at Bhatte's house, and of course you must have visited this memorial also. So all of you are very, very fortunate that you are staying in Belgaum and you have 2 memorials of Swami Vivekananda in one city. The only honored city is Belgaum, where 2 memorials are there. I also express my inability to speak to you in a voice in which I would have liked to speak because of the cold and cough. तो मैं पहले ही आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि सर्दी होने की वजह से मेरी आवाज़ शायद आपको अच्छी न लगे. आप बोलना हाथ उठा करके आप बैठ जाइए तो मैं बैठ जाऊंगा. In my book, Teacher as a Torchbearer of Change, I have mathematically proved, simple mathematics, A is equal to B, B is equal to C, C is equal to D, D is equal to E, therefore A is equal to E. Simple mathematics. I have mathematically proved that the best profession in the world, the greatest profession and the noblest profession in the whole world is that of a teacher. Nobody is greater than teacher in this world. I have mathematically proved. If at all any change has to be brought about, it will be brought about only by teachers. That also I have told there. So nation building can only come by the teachers. Dr. APJ Abdul Kalam has written a book, as you know, India 2020, a vision of the new millennium, where he says, if you are a teacher, in whatever capacity you are, even if you are a would-be teacher, how many of you are would-be teachers? कितने लोग B.Ed में पढ़ रहे हैं? B.Ed के स्टूडेंट हैं कितने लोग? हाथ ऊंचा करो. B.Ed के स्टूडेंट्स. So most of them are students. टीचर्स तो बहुत कम है. बट डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं? इफ यू आर ए टीचर इन वॉट एवर कैपेसिटी यू आर, एंड आई एम एडिंग दैट इवन इफ यू आर ए फ्यूचर टीचर, इफ यू आर ए टीचर इन वॉट एवर कैपेसिटी यू आर, you have a very important role to play in making India a developed country. Why? Because more than anybody else, it is you who are shaping the future generations. यदि आप शिक्षक हैं तो राष्ट्र निर्माण में आपकी सबसे बड़ी भूमिका है. क्यों? क्योंकि भविष्य की पीढ़ियों का निर्माण आप कर रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं. क्लास में जो विद्यार्थी बैठे हैं,
वो रॉ मटेरियल है, उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाना शिक्षक का कार्य है। अभी उसमें से आप चाहे डॉक्टर कलाम बनाइए, किरण बेदी बनाइए, स्वामी विवेकानंद बनाइए, महात्मा गांधी बनाइए, झांसी की रानी बनाइए, या फूलन देवी बनाइए, बिन लादेन बनाइए, सब आपके हाथ में है। तो भारत का ही नहीं, केवल विश्व का भविष्य आपके हाथ में है। एक टीचर ने थोड़ा सा कहा था, आपको मालूम होगा, कितने लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया गया। ये क्यों? एक टीचर ने उसके मन में घृणा भर दी थी ज्यूस के बारे में। हिटलर के मन में उसके शिक्षक ने एक घृणा का भाव भर दिया था कि ज्यूस लोगों को खत्म करना होगा। बाद में हिटलर किस प्रकार से लाखों लोगों को इस पर गैस चैम्बर में खत्म कर देता है। कितना एक शिक्षक की कितनी बड़ी भूमिका है। चाणक्य ने कहा ना कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। सृजन और पालन और विनाश, ये सब उसकी गोद में पलते हैं। आप सृजन भी कर सकते हैं, विनाश भी कर सकते हैं। कितना बड़ा पावर है शिक्षक के हाथ में। तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, खास करके जो लोग अभी बीएड के स्टूडेंट हैं। आप लोग को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा, अभिनंदन देना चाहूंगा कि विलिंगली और अनविलिंगली जानते हुए भी कि अजानते आपने टीचर बनने का निर्णय किया। शायद कुछ कंपल्सन भी होगा, फिर भी कैसे भी करके मां शारदा बोलती है कि यदि कोई गंगा में स्नान करने जाएगा तो उसको गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा, और कोई उसको धक्का देके मारेगा, धक्का मारेगा, वो गंगा में जाएगा तो भी उसका गंगा स्नान हो जाएगा। इस प्रकार से आप यदि अपनी मर्जी से शिक्षक बने तो भी आपका कल्याण है, आप दूसरों का कल्याण करेंगे, राष्ट्र निर्माण करेंगे। और यदि किसी ने धक्का दे करके आपको शिक्षक बनाने के लिए बीएड में भेजा है तो भी आप धन्य हैं, क्योंकि आप राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं। ये आपको याद रखना है ऑलवेज। इसीलिए मैं जब भी टीचर सेमिनार में जाता हूं तो शिक्षक लोग बोलते हैं, स्वामी जी देखिए हम लोग टीचर हैं ना, हम लोग को बोलने की आदत है, सुनने की आदत नहीं है। इसलिए आप शॉर्ट में बोलिएगा। यदि हो सके तो एक हमको मंत्र दे दीजिए, बस ये मंत्र है ना, हम मंत्र जाप करेंगे और हम अच्छे सक्सेस शिक्षक बन जाएंगे। तो आपकी भी छुट्टी, आपको भी ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, हम भी छुट्टी, हम तो ज़्यादा सुन नहीं सकते हैं, पीरियड लेते हैं। मैं बोला कि देखो विद्यार्थियों पर तुम कितना अत्याचार करते हो, थोड़ा आज मुझे भी करने दो। कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? तुम जैसा करोगे ऐसा तुमको मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तुम लोगों ने यदि विद्यार्थियों को बोर किया है बहुत सारा, तो मैं भी आज तुमको बोर करूंगा। कर्म का सिद्धांत है, जो करोगे वही फल मिलेगा। तो फिर बोलते आप छोटा सा लेक्चर, एक मंत्र दे करके आप चले जाइए। बोला ठीक है मैं मंत्र देता हूं, पर शर्त यह है रोज सुबह 10 बार उस मंत्र का जाप करना पड़ेगा, और रात को सोते समय 10 बार मंत्र का जाप करना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ मंजूर है मंजूर है, आप बोलिए जल्दी मंत्र बोलिए। बोल दूं मंत्र? आप लोग को चाहिए मंत्र? सक्सेस मंत्र, छोटा सा मंत्र है, बस सुबह 10 बार जप करना है, रात को 10 बार जप करना है, और गारंटी के साथ 6 महीने में सक्सेस आ जाएगी एज ए टीचर। चाहिए? बोल दूं? लिखने की जरूरत नहीं है, याद रहने जैसा मंत्र है। मंत्र ये है, आई एम ए टीचर। ये भगवान, हमने सोचा था कोई संस्कृत का मंत्र होगा, पावरफुल मंत्र होगा, ये भी कोई मंत्र है क्या? अभी मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, इस मंत्र का कितनी भी बार जप करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? ताकत मंत्र में नहीं है, आप कैसा मंत्र रटते हैं उसके ऊपर है। आई एम ए टीचर विद इन ब्रैकेट, हाउ मिजरेबल आई एम, हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम। मैं शिक्षक हूं, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, अरे ये शिक्षक का कार्य मिला है,
कोई भी गवर्नमेंट की योजना आती है उसमें शिक्षक को लगा देते हैं, जैसे हमारे पास कुछ काम ही नहीं है। क्या शिक्षक को प्रिंसिपल उधर से अलग ये करता है और ये पेरेंट्स लोग ये करते हैं, दोनों के बीच हम सैंडविच होते हैं। मैं तो शिक्षक हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो शिक्षक हूँ। आई एम हाउ मिजरेबल आई एम ए टीचर विद इन ब्रैकेट हाउ मिजरेबल आई एम, मैं कितना दुखी हूँ। ऐसा करके मंत्र जाप करने से नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। परंतु आई एम ए टीचर विद इन ब्रैकेट हाउ ग्रेट आई एम, देयर इज नोबडी ग्रेटर इन दिस वर्ल्ड देन अ टीचर। आई एम ए टीचर, नो आई एम ए टॉर्च बेयरर ऑफ चेंज, नो आई एम नेशनल, मैं राष्ट्र निर्माण में अपना भूमिका दे रहा हूं। मैं शिक्षक हूं, मेरे से महान कोई नहीं है, मैं महान हूं। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि इस राष्ट्र के निर्माण में इतना सारा महान कार्य मैं कर रहा हूं। आई एम ए टीचर, हाउ ग्रेट आई एम। इस प्रकार से मंत्र जाप करने से 6 महीने में। तो इसीलिए डॉक्टर कलाम ने कहा था कि यदि आप शिक्षक हैं, कोई भी क्षेत्र भूमिका में हो, यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले in making India a developed country. 16 अप्रैल 2003, 16th April 2003, I was at राष्ट्रपति भवन। मैं राष्ट्रपति भवन में था। हम लोगों ने एक सीडी बनाई थी उनके लेक्चर की। 13 फरवरी 2002 को डॉक्टर कलाम आए थे, एपीजे अब्दुल कलाम। तब उस समय भारत रत्न थे, प्रेसिडेंट नहीं बने थे। आपको मालूम होगा 13 फरवरी 2002, आपको मालूम होगा 26 जनवरी 2001 को गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया और जैसी रामकृष्ण मिशन की परंपरा है, तुरंत हमने राहत कार्य शुरू किया, रिलीफ वर्क शुरू किया। 20 करोड़ रुपए के खर्चे से हम लोगों ने 81 स्कूल बिल्डिंग बनाई। अभी आपने सुना उसमें से 37 स्कूल बिल्डिंग हमने पोरबंदर में बनाई और 6 कॉलोनी बनाई, उसमें से 3 कॉलोनी हमने पोरबंदर में बनाई। इसमें से एक स्कूल का उद्घाटन पोरबंदर में करने के लिए डॉक्टर कलाम को बुलाया था। वे आए 13 फरवरी 2002 को और उन्होंने उस स्कूल का उद्घाटन किया। 3000 विद्यार्थी थे, उनको बहुत अच्छा संबोधन किया। उसके बाद में 4 महीने में वो प्रेसिडेंट हो गए। उसके बाद में 16 अप्रैल 2003 को राष्ट्रपति भवन में मैं गया, वो जो सीडी हमने बनाई थी वो देने के लिए। उस समय मैंने डॉक्टर कलाम को, उसके पहले तो डॉक्टर कलाम के साथ बहुत बार मिले थे, राजकोट में मिले थे और राजकोट से पोरबंदर जाते समय कार में हम दोनों ही थे। बहुत सारी बातें हुई थी रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के बारे में। फिर उसके बाद में वहाँ पर पोरबंदर में मुलाकात हुई। फिर वहाँ से एरोप्लेन में बम्बई से राजकोट से बम्बई जब जा रहे थे तो मैं भी उसी समय जा रहा था, तो मेरे बाजू में बैठ गए। बोले स्वामी जी सुबह आपने बहुत अच्छी बात बताई, फिर से बताइए। तो ये सब हम लोगों ने कार में ट्रैवल किया, एक साथ प्लेन में ट्रैवल किया था। पर उस समय वो राष्ट्रपति नहीं थे। अब राष्ट्रपति बन गए, मैं सोच रहा था पता नहीं अब कैसे मेरे साथ व्यवहार करेंगे। तो फिर भी मैं गया सीडी देने के लिए। पर आश्चर्य की बात, राष्ट्रपति होने के बावजूद उनमें थोड़ा सा भी गर्व नहीं आया, अहंकार नहीं आया। इतना विनय, इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी नम्रता। जैसे मैं गया वो खड़े हो गए और सिंपल ड्रेस में थे। और मैं कुछ दूं इसके पहले बहुत बड़ी एक बास्केट दी, फल की बास्केट मुझे गिफ्ट में दी। फिर मैं अपने साथ किताबों, बहुत सारी किताबें ले गया था, स्वामी विवेकानंद की किताबें, फोटोग्राफ्स, ये सब मैंने उनको हाथ में दिया। तो उन्होंने कहा स्वामी जी यू ब्रॉट सो मेनी थिंग्स फॉर मी। स्वामी जी आप इतनी सारी चीजें मेरे लिए लाए हैं। तो मैंने मजाक करते कहा व्हाट कैन आई ब्रिंग फॉर यू, like a fakir I have come to meet an emperor. What can I bring for you? Like Sudama I have come from Sudamapuri, that is Porbandar. What can I bring for you? क्योंकि मैं तो फकीर हूँ, सन्यासी हूँ और वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने कहा मैं तो फकीर हूँ, तो व्हाट कैन आई ब्रिंग फॉर यू, लाइक एन हाउ ए फकीर कैन, मैं फकीर हूँ और आप तो एम्परर हैं, आप सम्राट हैं, राष्ट्रपति हैं, मैं भला क्या ला सकता हूं। तुरंत उन्होंने उत्तर दिया, बिना, तुरंत एक क्षण के लिए भी बिना सोचे उत्तर दिया, तुरंत उत्तर दिया। ओनली वन एम्परर स्वामी जी, वी आर सर्वेंट्स ऑफ द सेम एम्परर। कहा कि स्वामी जी एम्परर तो एक ही है, सम्राट एक ही है, भगवान,
हम सब तो उसके दास हैं। कितनी नम्रता है। फिर बहुत सारी बातें हुई। फिर मैंने कहा डॉक्टर कलाम, यू वांट टू मेक इंडिया डेवलप्ड कंट्री, आप लोग इतना 5 ईयर प्लान वगैरह बना रहे हैं, परंतु मैं आपको बता देता हूं कि आप पंचवर्षीय योजना में कितना भी पैसा डालेंगे, बैंक, वर्ल्ड बैंक से लाएंगे, हमारे देश का जीडीपी तो बढ़ जाएगा, पर गरीब लोग गरीब ही रहेंगे, गरीबी नहीं जाएगी। भाई स्वामी जी, वाई? बहुत एक्साइटेड हो गए। मैंने कहा फॉर द सिंपल रीजन, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेड, if you put 1 rupee to the 5-year plan, only 15 paisa comes to the grassroots level farmer. I'm afraid even 5 paisa is coming or not. And by the time 5 paisa has come, the farmer has already committed suicide. मैं 2003 की बात कर रहा हूं। Rampant corruption in the country today. ऐसा भ्रष्टाचार, मैंने कहा 2003 में, इतना भ्रष्टाचार है देश में कि आप कितना भी पैसा लाएंगे, कैसा भी योजना बनाएंगे, जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी। और हमने देखा बाद में जीडीपी ग्रोथ 9.5% हुई, पर पॉवर्टी लाइन वही 25% रही। ये तो बाद में प्रूव हो गया। तो मैंने कहा कि गरीबी नहीं जाएगी बिकॉज ऑफ रैम्पेंट करप्शन, भ्रष्टाचार है। व्हाट इज द सॉल्यूशन स्वामी जी? व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैंने कहा ओनली वन सॉल्यूशन, समाधान एक ही है। क्या? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था एजुकेशन 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 अलोन इज द पैनेशिया ऑफ ऑल अवर इविल्स। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, हमारे जितनी समस्याएं हैं उसका एकमात्र समाधान है शिक्षा, एकमात्र समाधान शिक्षा। पर किस प्रकार की शिक्षा? जिस प्रकार की शिक्षा अधिकांश कॉलेजों में, स्कूलों में दी जा रही, ऐसी नहीं शिक्षा। तो कौन सी शिक्षा? स्वामी जी ने कहा था व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। हमें मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा चाहिए, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा चाहिए। और अधिकांश जगह पर, मैं मजाक में कहता हूं, अधिकांश जगह पर हम क्या शिक्षा देते मालूम है? राक्षस निर्माणकारी शिक्षा, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा नहीं। ये राक्षस किसको बोलते हैं मालूम है? ये दो सिंग वाले राक्षस नहीं जो आप टीवी में देखते हैं। ये मॉडर्न राक्षस तो सफारी सूट में आते हैं, मॉडर्न राक्षसी जीन्स में आती है। ये मॉडर्न राक्षस राक्षसी ये है कौन? ये आपके आसपास में ही है। ये राक्षस है कौन? भर्तृहरि नाम के बहुत बड़े विचारक हमारे यहां हो गए, उन्होंने बहुत किताबें लिखी। उसमें से एक किताब का नाम है नीति शतकम। उसमें कहते हैं समाज में 4 प्रकार के मनुष्य हैं। कौन कौन से? एते सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थान परित्यज्य सामान्यस्तु परार्थम उद्यम अभ्रतः स्वार्थ अविरोधेन ये तेमी मानव राक्षसाः परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम तेके न जानीमहे। 4 प्रकार के मनुष्य। पहले प्रकार के मनुष्य कैसे हैं? सत्पुरुष। ये कैसे होते हैं? खुद का स्वार्थ त्याग करके दूसरों की सेवा करते हैं। दूसरा सामान्य मनुष्य, पहले खुद का स्वार्थ देखते हैं, फिर दूसरों की सेवा करते हैं, फिर दूसरों का उपकार करते हैं। तीसरा मानव राक्षसा, नाम उसका दिया मानव राक्षस। दिखने में मनुष्य है पर है राक्षस, मानव राक्षसा। ये कहते हैं अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों का कितना भी नुकसान करने को तैयार हो जाए, उसका नाम मानव राक्षसा। कहां मिलते हैं? आपके पड़ोस में ही है यहां नहीं, घर के पास में यहां तो सब अच्छे अच्छे लोग आए हैं एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो क्या करता है? बिल्डर को बोलता है तुझे सीमेंट में जितनी रेत मिलाना हो मिला दे। डैम बन रहा है, रिजर्वायर, चेक डैम बनाते समय
तू सीमेंट में जितनी रेत मिलाना मिला दे, पर मेरे को 1 करोड़ रुपया दे दे, टेबल के नीचे से, ऊपर से नहीं, रिश्वत। अब बिल्डर ने 1 करोड़ रुपया तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे दिया। वो क्या करता है, जब चेक डैम बनाता है तो सीमेंट कितनी डालता है, बहुत कम, और रेत बहुत ज्यादा। डैम बन गया, अभी इनॉग्रेशन करना है, मिनिस्टर को बुलाया, बताया इनॉग्रेशन के लिए, तो डेट नहीं मिल रही है क्योंकि मिनिस्टर बहुत बिजी है। उतनी देर में जोर से वर्षा आई, डैम खत्म उद्घाटन के पहले ही खत्म। सैकड़ों लोग मर गए, हजारों बेघरबार हो गए, देश का करोड़ों का नुकसान हो गया। पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या बोलता है, कोई बात नहीं, देश जाए भाड़ में, समाज जाए भाड़ में, मेरा तो मकान बन गया 1 करोड़ रुपए में, देश जाए भाड़ में। ये कौन है, मानव राक्षसा। और ये सभी क्षेत्र में है, मैंने तो केवल एक उदाहरण दिया। डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सभी क्षेत्र में ये मानव राक्षसा बैठे हुए हैं। इसलिए भर्तृहरि जी कहते हैं ये 4 प्रकार के मनुष्य में, पहला सत्पुरुष, दूसरा सामान्य मनुष्य, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, तीसरा मानव राक्षसा, उन्होंने कहा चौथा भी है, पर ते के न जानी महे, उसका नाम मैं नहीं दे सकता, काम बता देता हूं। तीसरे प्रकार के ऐसे होते हैं कि छोटे से अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का कितना भी नुकसान करने को तैयार हो जाए। ये चौथे प्रकार के ऐसे होते हैं, खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता है, उसको कोई फायदा नहीं होता है, दूसरों के नुकसान में ही जिनको आनंद आता है ये चौथे प्रकार के, ते के न जानी मैं। किसी के घर में आग लगे, मजा आ गया, अरे तुमको कुछ फायदा हुआ, अरे उसके घर में आग लगी, हमको बहुत मजा आ गया। अच्छा, कोई विद्यार्थी फेल हो गया, अरे बहुत मजा आया, बहुत, अरे तुमको 1 नंबर मिला नहीं, पर वो फेल हो गया, मुझे बहुत आनंद आया। ये कैसे है, चौथे प्रकार के, खुद का कोई फायदा नहीं होता है, दूसरों के नुकसान में ही आनंद आता है। ये 4 प्रकार के मनुष्यों की बात नीति शतकम में भर्तृहरि ने कही है, और मैंने अभी लेटेस्ट रिसर्च की है 5वें प्रकार के शायद भर्तृहरि के समय में नहीं होंगे, अब उसका नाम मैं नहीं बता सकता, ते के न जानी महे, काम बता देता हूं। चौथे प्रकार के ऐसे होते हैं, खुद का कोई फायदा नहीं होता, दूसरों के नुकसान में जिनको बहुत आनंद आता है। 5वें प्रकार के, दूसरों के नुकसान में इतना आनंद आता है कि खुद का नुकसान करके दूसरों का नुकसान करते हैं। तो क्या किया, एरोप्लेन में बैठ गए, बैठ करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर को टकराया, मैं मर गया कोई बात नहीं, 5000 को मार डाला, क्या मजा आ गया, है कि नहीं। टेररिस्ट लोग है कि नहीं, 5वें प्रकार का है कि नहीं। और वो कहानी तो आप लोगों ने सुनी हुई, शंख वाली कहानी सुनी है, शंख वाली कहानी नहीं सुनी, टाइम तो बहुत कम है, ठीक से मैं जल्दी से बता देता हूं। एक आदमी था, वो हमारी शिक्षा पद्धति में जो जैसा होता है, ग्रेजुएट था, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट, नौकरी मिलती नहीं थी। उसकी पत्नी रोज उसको बहुत कटाक्ष वचन बोलती थी, क्या कुछ करते नहीं हो, क्या कुछ करते नहीं हो, क्या कुछ करते नहीं हो। रोज ऐसा सुन सुन के वो इतना परेशान हो गया, एक दिन घर से भाग गया। रोज कौन सुने, कुछ करते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, भाग गया। घर के भाग करके आया जंगल में, जंगल में एक साधु बाबा की सेवा की। साधु बाबा बहुत प्रसन्न हो गए, बोल बेटा तुझे ज्ञान का रास्ता बताऊं ना भक्ति का रास्ता हमको ज्ञान भक्ति कुछ नहीं चाहिए, कुछ जंतर मंतर कर दो, कुछ चमत्कार कर दो। आजकल अधिकांश लोग जो धर्म में आते हैं ना, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो भगवान से, उनको भगवान नहीं चाहिए, उनको भगवान से चाहिए और अधिकांश लोग जो बाबा जी लोग के पास भी आते हैं तो वो भी यही चाहते हैं, कोई चमत्कार कर दो, जंतर मंतर कर दो। ये बाबा जी ने बहुत समझाया, अरे वो सब चक्कर में मत पड़,
भक्ति का रास्ता ले ले, ज्ञान का रास्ता ले ले, ईश्वर की प्राप्ति होगी। मुझे ईश्वर नहीं चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। तो फिर उसने कहा ठीक है जा, इतनी तूने सेवा की है, ये मंत्र तुझे देता हूं, कोई जंतर मंत्र दे दो। बोले ये मंत्र तुझे देता हूं, समुद्र देवता के पास जाना और ये मंत्र का जाप करना, समुद्र देवता तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो गया वो समुद्र देवता के सामने आया और जो मंत्र दिया था, मंत्र का जाप शुरू कर दिया। समुद्र देवता प्रकट हो गए, मांग 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 ले, मांग ले, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तो उस आदमी ने कहा, समुद्र देवता आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, ये पत्नी रोज मुझको बहुत कोसती है, बहुत मुझे डांटती है, ये मुझसे सहन नहीं होता है, कुछ ऐसा करो जो मुझे डांट सहन न करना पड़े। तथास्तु, ये शंख तुझे देता हूं, ये शंख की पूजा करके तुझे जो चाहिए तुरंत तुझे मिल जाएगा, जा। वो तो इतना खुश हो गया, शंख लेकर के जाने लग गया। फिर समुद्र देवता ने कहा, पर आगे सुन, तू जितना जो भी मांगेगा तुरंत तुझे मिलेगा, पर तेरे पड़ोसी को बिना मांगे दुगना मिलेगा। जैसा ही वो सुना, बेहोश होके गिर गया, क्योंकि वो पड़ोसी से रोज झगड़ा होता था। अब क्या करेगा, शंख को लेकर घर में आया। पत्नी बोली कहाँ गए थे? अरे मैं तो पुलिस में जा रही थी FIR करने के लिए। ये क्या है? अरे ये शंख है, हम जो मांगेंगे मिलेगा। अरे तो बहुत अच्छा है, लाइए लाइए। अरे पगली आगे तो सुन, हम जो मांगेंगे हमको तुरंत मिलेगा, वो पड़ोसी को दुगना मिलेगा, जिससे मेरा रोज झगड़ा होता है, ये मुझसे सहन नहीं होगा। ऐसा का ऐसा गरीब रहा। एक दिन पति देवता नौकरी में खोज में थे, अब पत्नी से नहीं रहा गया, कपड़े फट गए हैं, मकान टूटा फूटा है, उसका भी मकान टूटा फूटा, पड़ोसी का मकान टूटा फूटा है, और खाने को घर में कुछ नहीं है। तो उसने क्या किया, एक कोने में शंख देवताओं को प्रस्थापित किया, पूजा शुरू की, और शंख देवता प्रकट हो गए। मांग ले, जो मांगना है मांग ले। हे शंख देवता, आप तो अंतर्यामी है, देखिए ना कि ऐसी हमारी हालत है, कपड़े भी फट गए हैं, मकान भी टूटा फूटा है, खाने को भी कुछ नहीं है। तथास्तु। शाम को पति देवता आए, अरे मैं कहां पहुंच गया, रास्ता भटक गया। 2 मकान थे, उसका और पड़ोसी का दोनों टूटे मकान थे, 3 मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, उसमें से एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से ऊपर के मजले से एक सुंदर स्त्री बुला रही है, आइए आइए आइए। पास में जाकर के देखा खुद की पत्नी है, नया कपड़ा पहना, पहचान में नहीं आ रही है। अरे बोले कैसे हो गया? अरे आप ही की बदौलत है, आप जो शंख लाए थे, देखिए उसके कारण मेरे कितने सुंदर कपड़े हो गए, देखो कितना हमारा सुंदर मकान बन गया, देखो कितना सुंदर खाने को है, खाने को बैठ जाइए, खाने को बैठ जाइए। अरे आप रो रहे हैं, आपको आनंद नहीं हो रहा है, इतना अच्छा मकान बन गया? अरे पगली उधर तो देख, वो पड़ोसी के 2 मकान बन गए, मैं नहीं खाऊंगा, मुझसे खाया नहीं जाएगा। हाय 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 हाय, शंख लाया मैं, वो मकान बने पड़ोसी के, हाय हाय हाय, ये मैंने क्या किया? पड़ोसी के 2 मकान बन गए, पड़ोसी के 2 मकान गए, सिर कूटने लग गया। पड़ोसी के 2 मकान बन गए, हाय हाय, पड़ोसी के 2 मकान गए, पागल जैसा हो गया। सारी रात चिल्लाता रहा, अरे पड़ोसी के 2 मकान गए, पड़ोसी के 2 मकान बन गए। फिर दूसरे दिन सुबह कोना साफ किया, शंख देवता को प्रस्थापित किया, शंख देवता प्रकट हो गए, मांग ले मांग ले मांग ले। हे शंख देवता, जो मुझ पर प्रसन्न है, तो मेरे मकान के सामने एक कुआं बना दीजिए। तो कुआं बन गया तुरंत, वो 2 मकान के सामने 2 कुएं बन गए। हे शंख देवता, यदि आप पर मुझ पर प्रसन्न है, मेरी एक आंख फोड़ डालिए। उसकी एक आंख फूट गई, पड़ोस की दोनों आंखें फूट गई, अंधा हो गया, कुएं में गिर के मर गया। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, नाचने लग गया, वो नाचने लग गया। ये कौन है? 5वें प्रकार का। भले मेरी आंख फूट गई, पर पड़ोसी तो मर गया ना, मुझे बहुत आनंद आया। अभी हमारे समाज में 5वें प्रकार के है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ,
कि ना? पांचवें प्रकार के हैं, चौथे प्रकार के हैं। मानव राक्षसा चारों तरफ है, सामान्य मनुष्य कम है, और सत्पुरुष माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। अब समझे क्यों स्वामी विवेकानंद ने कहा था व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, नॉट राक्षसा मेकिंग एजुकेशन। राक्षस निर्माणकारी शिक्षा नहीं चाहिए। जो आज की शिक्षा है वो राक्षस निर्माणकारी शिक्षा है। सूचना सेठ नाम सुना है? नहीं सुना? सूचना सेठ नाम की एक बहुत पढ़ी लिखी सीईओ ऑफ ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी के बड़ी कंपनी, उसकी सीईओ थी, बेंगलोर में रहती थी। गोवा में गई, एक होटल में चेक इन किया, उसके 5 साल के बच्चे को मार डाला, मर्डर किया, और सूटकेस में उसके टुकड़े टुकड़े करके जा रही थी, तब पुलिस ने उसको पकड़ा। होटल वाले ने बोला था इसलिए। ये है सो कॉल्ड एजुकेशन, राक्षस निर्माणकारी शिक्षा। पढ़ी लिखी वही, वो सूचना सेठ बहुत पढ़ी लिखी है, हाईली एजुकेटेड, पर अपने छोटे 4-5 साल के बच्चे को खत्म कर दिया, काट करके सूटकेस में ले गई, टुकड़े टुकड़े कर डाला। ये है मॉडर्न एजुकेशन। इसलिए स्वामी विवेकानंद का जो उन्होंने पहले ही कहा था, इसलिए मैं डॉक्टर कलाम को कहा, डॉक्टर कलाम जो 15 अगस्त 1947 को हमको करना चाहिए था, अभी हमको करना पड़ेगा। व्हाट? मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, उसको हमको डालना पड़ेगा। मोर दिस वैल्यू एजुकेशन शुड गेट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। डॉक्टर कलाम ने कहा स्वामी जी लेट अस वर्क टुगेदर, चलो हम साथ में काम करें। फिर मैंने कहा चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। लोगों ने रामकृष्ण मिशन में हमारी 2000 लगभग शैक्षिक संस्था हैं, जिसमें औपचारिक अनौपचारिक 2 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। उसमें उन लोगों को तो हम कुछ वैल्यू एजुकेशन देते हैं जितना हो सकता है, बिकॉज ऑफ द टिपिकल लॉज ऑफ द सेकुलरिज्म, फिर भी हम थोड़ा सा देते हैं। हमारी हॉस्टल में जो रहते हैं उनको तो बहुत अच्छा वैल्यू एजुकेशन मिलता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके प्रार्थना करते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं, पर जो डे स्कॉलर है उसमें भी हम कुछ वैल्यूज़ देने का प्रयत्न करते हैं। उसके सिवा हमारे पास कुछ संस्थाएं हैं जिसमें हम वैल्यू एजुकेशन ही देने का प्रयत्न कर रहे हैं। रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस, ये हैदराबाद में है। ऐसी कुछ संस्थाएं जो है, और उसी प्रकार की एक संस्था हम पोरबंदर में खोलना चाहते हैं, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड कल्चर, विवेक, और हम चाहते हैं उसका उद्घाटन आपके द्वारा हो। डॉक्टर कलाम ने कहा यस स्वामी जी आई विल श्योरली कम, और उन्होंने अपना प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल किया। उन्होंने वचन दिया था, वो उसका पालन किया। 12 जनवरी 2006, 12 जनवरी 2006, जैसा आप लोग जानते हैं हमारा राष्ट्र स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाता है। वो दिन था, उस दिन डॉक्टर कलाम आए, उन्होंने उद्घाटन किया विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर। बहुत अच्छा प्रवचन दिया। 5000 युवा थे, विद्यार्थीगण थे, टीचर्स थे, ये सभी उस समय उपस्थित थे। उस समय डॉक्टर कलाम ने पहले तो बताया स्वामी विवेकानंद इज ए ग्रेट पर्सनालिटी नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ द होल ग्लोब। सारी पृथ्वी के बहुत बड़े व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद। और फिर किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने जमशेदजी ताता को इंस्पायर किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोलने के लिए, जब दोनों ट्रैवल कर रहे थे एक ही जहाज में, जापान से शिकागो तक, जापान से वैंकूवर तक। वो सब बातें उन्होंने कही और फिर उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए। एक विद्यार्थी खड़ा हो गया, सर ऑपरेशन दुर्योधन, ऑपरेशन चक्रव्यूह एंड अदर ऑपरेशंस हैव रिवील्ड द टिप ऑफ द आइसबर्ग that is rampant corruption in the country today. As the President of India, how do you feel about it? And where do you think lies the solution? Sir, हमारे देश में ऑपरेशन चक्रव्यूह और ये सभी ऑपरेशन जो हुए, इनके कारण
पता पड़ गया कितना भ्रष्टाचार है हमारे देश में। तो राष्ट्रपति होने के नाते आपको कैसा लगता है और इसका क्या समाधान हो सकता है? डॉक्टर कलाम खड़े हो गए। यू सी द पार्लियामेंट हैज ऑलरेडी टेकन सम एक्शन ऑन दोज एमपीज। वो सांसदों ने जो किया था उसके ऊपर कुछ तो एक्शन लिया है पार्लियामेंट ने। और फिर डॉक्टर कलाम ने स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक हाथ में ली और उसके पुस्तक से पढ़ना शुरू किया, जिसमें स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, नो नंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट्स कैन मेक ए नेशन गुड, कैन मेक ए नेशन ग्रेट। आप संसद के कितने भी नियम बदल लाइए, उसके द्वारा हमारा राष्ट्र अच्छा नहीं होगा, राष्ट्र महान नहीं होगा। Then how the nation can become great and how can the nation become good? फिर उन्होंने फिर से स्वामी विवेकानंद की किताब में से पढ़ के सुनाया, only a large number of good enlightened citizens, good people can make a nation good and can make a nation great. जब हमारे देश के अधिक से अधिक लोग प्रबुद्ध नागरिक बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तभी हमारा देश अच्छा बनेगा, तभी हमारा देश महान बनेगा। और फिर उन्होंने कहा, एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोड्यूस गुड पीपल एंड द गवर्नमेंट विल नॉट प्रोड्यूस गुड पीपल। ये भी बोल दिया। सरकार अच्छा मनुष्य बनाएगी नहीं, बना भी नहीं सकती और बनाएगी भी नहीं। देन हु कैन डू इट? कौन बना सकता है? डॉक्टर कलाम ने कहा, ओनली 3 persons कैन डू इट। हु आर द 3? फादर, मदर एंड द टीचर, नोबडी एल्स। माता, पिता और शिक्षक, ये 3 ही अच्छे मनुष्य बना सकते हैं। और ये अच्छे मनुष्य जब बनेंगे, हमारे देश में अधिक से अधिक लोग अच्छे मनुष्य होंगे, प्रबुद्ध नागरिक होंगे, तभी हमारा देश महान बनेगा। नहीं तो हम कितना भी तरक्की कर लें साइंस टेक्नोलॉजी में, अभी इकोनॉमिकली हमारा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हो जाएगी 10 साल के भीतर में, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमारी गरीबी नहीं जाएगी, हमारा देश महान नहीं बनेगा जब तक कि भ्रष्टाचार नहीं जाएगा, जब तक कि हमारे देशवासी प्रबुद्ध नागरिक नहीं बनेंगे, तब तक हमारा देश आगे नहीं जाएगा। स्वामी विवेकानंद का सपना था भारत विश्व गुरु बनेगा। जब स्वामी जी शिकागो विश्व धर्म सभा में उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया 11 सितंबर 1893 को, और सनातन धर्म का झंडा फरकाया, 3.5 वर्षों तक वहाँ पर वेदांत का प्रचार किया। जब 1897 में वापस लौटे तब उनका ऐसा अद्भुत स्वागत हुआ जैसा कि एक विश्व विजेता का स्वागत होता है। इस स्वागत के उत्तर में उन्होंने जो प्रवचन दिए, अग्निमय भाषण, सबसे पहले वो कोलंबो से आए और कोलंबो से लेकर के फिर वहाँ से रामनाथ, मद्रास, कलकत्ता जाते हुए अल्मोड़ा तक में सब जगह उन्होंने जो भाषण दिए, अत्यंत तेजस्वी भाषण, अत्यंत ओजस्वी भाषण, अत्यंत प्रेरणादायी प्रवचन, और ओजमयी भाषा में वो अग्निमय भाषण, इन सब का पूरा संकलन किया गया। किताब का नाम रखा गया लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, भारतीय व्याख्यान। उसको आप पढ़िए। हमारे देश के जितने महान नेता, जितने महान देशभक्त, जितने महान क्रांतिकारी, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें। एक विद्यार्थी 9वीं कक्षा में पढ़ता था कटक के हाई स्कूल में, उसके हाथ में स्वामी विवेकानंद की पुस्तक हाथ में लगी और पढ़ करके उसको इतनी प्रेरणा मिली, उसने निर्णय किया कि वो सारा जीवन देश की सेवा में लगा देगा, अपना बलिदान कर देगा अपने जीवन का। बाद में उसका नाम हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी जब बेलूर मठ आए थे 30 जनवरी 1921 को, तब सबने कहा गांधी जी भाषण दीजिए। गांधी जी कहा मैं भाषण देने नहीं आया, मैं तो स्वामी विवेकानंद के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देने आया हूं। पर जितने युवक लोग हैं उनको मैं बोलूंगा, जब इस महास्थल पर आए हो तो खाली हाथ वापस मत लौटना, यहाँ की प्रेरणा कुछ लेकर के जाना। और फिर गांधी जी ने कहा
स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ा है और स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। गांधी जी कहते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, हम जब अपने मित्रों से पत्र लिखते थे तो उसमें स्वामी विवेकानंद के पत्र को डाल देते थे। क्यों? स्वामी विवेकानंद की किताब थी पत्रावली, बंगला में थी, उसके ऊपर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने, अभी लेटेस्ट रिसर्च ये बोल रही है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा था, हम जब जाते हैं क्रांतिकारियों के यहाँ तो कभी हमको बॉम्ब मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, पर 2 बॉम्ब जरूर मिलते हैं। कौन कौन से 2 बॉम्ब? एक भगवत गीता की पुस्तक और एक स्वामी विवेकानंद की पुस्तक। अतः स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, नहीं तो ये क्रांतिकारियों को हम थमा नहीं सकेंगे। उसको प्रोस्क्राइब करने के लिए पूरी मूवमेंट चली थी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट द्वारा। इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, हम लोग डरते थे स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को। अभी तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है, बुक स्टॉल में जाइए, कोई पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं, कोई पुलिस पकड़ने वाले नहीं। आप यदि स्वामी विवेकानंद की किताब खरीदते हैं, बल्कि आपका कोई पुलिस आपको पकड़े। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में ऐसा था कि यदि स्वामी विवेकानंद की पुस्तक आपके हाथ में आई तो आपके ऊपर उनकी नजर रहती थी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की, ये भी क्रांतिकारी होगा शायद, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ रहा है। अभी आपको चिंता की बात नहीं है। तो डॉक्टर राधाकृष्ण कहते हैं, हम अपने मित्रों को पत्र लिखते थे, उसमें स्वामी विवेकानंद की किताबों को इनके पत्रों को हम उद्धृत कर देते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने फ्रेंच मनीषी रोमारोला को कहा था, इफ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद, इन एवरीथिंग इज पॉजिटिव नथिंग नेगेटिव। ये सेंटेंस आपको मिलेगा, बुक स्टॉल में लिखा हुआ है। यदि आप भारत को जानना चाहते हैं अच्छी तरह से, स्वामी विवेकानंद की किताबों पढ़िए, उसमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ नहीं है। और फिर जब रोमारोला ने किताब पढ़ी, वो इतने प्रभावित हुए किताब से कि उन्होंने नेता इतने प्रभावित हुए स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ के रोमारोला, उन्होंने बाद में स्वामी विवेकानंद पर जीवन लिखा और उन्होंने स्वामी विवेकानंद के किताबों के बारे में लिखा। His words are great music, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his, scattered as they are through the pages at a 30th distance, without receiving a thrill through my body like an electric shock. आज भी जब स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ता हूं, हमारा लोग कहते हैं मानो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इतना रोमांच होता है। ये स्वामी विवेकानंद की किताबों में आपने देखा होगा, एक सेंटेंस आपने देखा होगा, सारा देश जब निद्रित अवस्था में था, गुलामी की निद्रा, सैकड़ों वर्षों की गुलामी की निद्रा, स्वामी उसको जगाया। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और सारा देश जाग गया। और स्वामी विवेकानंद युग दृष्टा थे, भविष्यवेत्ता नहीं थे। उन्होंने जो जो बातें कही सब कुछ हुई। 1897 में उन्होंने कहा था 50 वर्षों के भीतर भारत स्वाधीन होगा। अप्रत्याशित रूप से किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत स्वाधीन हो सकता है। गांधी जी तो 1915 में आए थे, असहयोग आंदोलन तो बाद में चलाया, पर 1897 में 1897 में स्वामी विवेकानंद ने कहा था भारत स्वाधीन होगा 50 वर्षों के भीतर। और ठीक 50 वर्ष के बाद 1947 में भारत स्वाधीन हो गया। 1897 से 50 साल गिनिए, 1947। परंतु स्वाधीनता के बाद क्या हुआ? स्वाधीनता के बाद हमने स्वामी विवेकानंद का मंत्र भुला दिया और हम लोग सो गए। हमने देशभक्ति के संदेश को भुला दिया। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। हमने क्या किया? उठे, जागे, स्वाधीनता प्राप्त की और फिर सो गए। स्वामी जी ये नहीं कहा था उठो, जागो और सो जाओ। क्या कहा था? उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और राजनैतिक स्वाधीनता स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य नहीं था। क्या लक्ष्य था? स्वामी जी ने कहा था मद्रास के भाषण में, इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअलिटी। अप इंडिया एंड कॉन्कर द वर्ल्ड बाय योर स्पिरिचुअलिटी। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा
अपनी आध्यात्मिकता के द्वारा धीरे धीरे हो रहा है। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे सारा विश्व मना रहा है। 20 लाख अमेरिकन प्रतिदिन ध्यान करते हैं। ध्यान और योग और आध्यात्मिकता सारे विश्व में भारत अपने आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु तरफ बनने बढ़ रहा है। परंतु हम तब तक विश्व गुरु नहीं बन सकते जब तक कि हमारा देश विकसित देश नहीं होगा। और भारत में विकसित देश बनाना है तो भारत का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। और भारत का पुनर्निर्माण कब होगा? डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं ईंटों के द्वारा मकान का निर्माण कर सकते हो, देश का निर्माण नहीं कर सकते। तो देश का निर्माण कैसे होगा? जब हमारे देश के विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण होगा तब राष्ट्र का निर्माण होगा। और विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कैसे होगा? जब उसमें संस्कार अच्छे आएंगे। 4 प्रकार के संस्कार 4 प्रकार से आते हैं। पूर्व जन्म से आते हैं, माता पिता के माध्यम से आते हैं, वातावरण से आते हैं, और सबसे बड़ा जो उसमें एक फैक्टर रहता है वो फैक्टर है टीचर। शिक्षक के माध्यम से संचालन जो संस्कार सिंचित होते हैं उसके कारण कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। तो चरित्र निर्माण में, विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका है शिक्षकों की। इसलिए मैं कहता हूं मात्र शिक्षक ही हमारे देश के भविष्य है और सारे विश्व का भविष्य है। सारे विश्व को यदि बचना है तो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम वाली संस्कृति, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती वाली संस्कृति को अपनाना पड़ेगा विश्व को। ये कब होगा? जब भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु कब बनेगा? जब भारत का पुनर्निर्माण होगा। भारत का पुनर्निर्माण कब होगा? जब भारत के वर्तमान जो विद्यार्थी हैं उनका चरित्र निर्माण होगा। इसलिए शिक्षक के महान, शिक्षक के ज्यादा महान इस भारत में और कोई नहीं है। यह मैंने प्रमाणित कर दिया है अपनी किताब में। टीचर। और अंत में फिर से ये मंत्र आपको दे करके जा रहा हूं। मंत्र क्या है? I am a within bracket how great I am, within a bracket how great I am। मैं शिक्षक हूं, मैं कितना महान हूं। सारे विश्व को बचाना है तो भारत को विश्व गुरु बनना पड़ेगा। भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब भारत विकसित देश बनेगा। भारत विकसित देश तब बनेगा जब हमारे आज के जो विद्यार्थी हैं, जो भविष्य के जो प्रधानमंत्री, भविष्य के मुख्यमंत्री, भविष्य के मंत्री, भविष्य के आईएएस ऑफिसर्स, भविष्य के आईपीएस ऑफिसर्स, भविष्य के चार्टर्ड अकाउंटेंट, भविष्य के बिजनेसमैन, भविष्य के बिरला, टाटा, अंबानी, ये सब आपकी क्लास में है। आपको जैसा बनाना हो बनाओ, राष्ट्र को बनाना है। इसका पूरा कर्तव्य, सारा भविष्य, भारत का भविष्य, विश्व का भविष्य शिक्षकों के हाथ में है, दूसरे किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं ये मंत्र है आई एम ए टीचर। मैं अंत में भगवान श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद हम सब पर बरसे और उन्होंने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चल करके, खास करके स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, और विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कब होगा? स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता को, मिस मार्गरेट नोबल को उन्होंने बुलाया था। उन्होंने कहा था मिस मार्गरेट नोबल को, sacrifice, sacrifice, sacrifice in the past has been the law. It will be alas for ages to come. The earth's best and bravest will have to sacrifice themselves for the good of humanity. Buddhas by the hundreds are necessary with eternal love and pity. त्याग त्याग त्याग, बलिदान बलिदान बलिदान, बलिदान चाहता है सारा विश्व। कौन बलिदान देगा? मिस मार्गरेट नोबल ने अपने जीवन का बलिदान दिया, भारत में आ गई। और भारत में नारियों की शिक्षा के लिए स्वामी विवेकानंद कहते जब तक हमारे देश की नारियां शिक्षित नहीं होगी, नारी विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। नारी को शिक्षित करने के लिए वो आई और मिस मार्गरेट नोबल ने अपना जीवन बलिदान दे दिया। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने जब ब्रह्मचर्य दीक्षा दी उसका नाम दिया निवेदिता। सिस्टर निवेदिता का जीवन पढ़िए, अद्भुत जीवन, कैसी शिक्षिका थी। हर एक विद्यार्थिनी की डायरी रखती थी, कौन विद्यार्थी कितना प्रोग्रेस कर रही है। सिस्टर निवेदिता की किताब आपको मिलेगी, वहाँ पर आप अवश्य सिस्टर निवेदिता की किताब पढ़िए, बहुत उससे प्रेरणा मिलेगी। और उसको स्वामी विवेकानंद ने निवेदिता को कहा था बी एंड मेक, ये फॉर्मूला दिया था। पहले तुम महान बनो, फिर दूसरों को महान बनाओ। पहले तुम अपना चरित्र निर्माण करो,
फिर दूसरों का चरित्र निर्माण हो। यही एकमात्र प्रोसेस है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति प्रदान करें कि हम अपना चरित्र निर्माण कर सके और फिर विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करके भारत को विश्व गुरु बनाने में हम अपना छोटा सा योगदान दे सके। ऐसी शक्ति हमें प्रदान करे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।